Welcome to the next session, my dear students. So in the previous session we have discussed about the cross product and dot product, and now today we are going to discuss about the resolution of vectors. So एक वेक्टर अगर एक एक्स वाई प्लेन में है या एक्स वाई जेड प्लेन में है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उसको यूज़ करना है इन डिफरेंट एक्सेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन देखेंगे हम आज. सो resolution of vector. See, if some vector is in xy plane like this, let this is x-axis and this is y-axis. Okay, so our vector is like this. It is like this, and it is making an angle theta with the x-axis. Let it is making an angle theta with the x-axis. Let the vector is a. Okay, let the vector is a. Then this, for this vector there will be there will be x-axis component, horizontal component, let it is ax, and at the same time there will be y-axis component, that is ay. As I already explained you earlier, whenever you are closing the angle, then you need to keep cos theta. So that means a cos theta is the x-axis component, and ay, that is a sin theta, that is y-axis component. For this vector a, there is an x-axis component, that is a cos theta, y-axis component is a sin theta. For example, let a is a vector a1i plus a2j plus a3k. Then ax vector will be a1 cos theta I plus a2 cos theta j plus a3 cos theta k. Like this, the x-axis component will be like this, and y-axis component ay is like this: a1 sin theta, a2 sin theta, and a3 sin theta. So it will be classified like this. Okay. So if you find the resultant of these two vectors ax and ay, so for example you don't know the a vector. So हमको ना भाई a vector मालूम नहीं है. We don't know this a vector, but we know x component and y component. So from the law of triangles, see, अगर दो vectors हैं ax and ay, they are coming out of this vector a. ये दोनों vectors कहाँ से आया? ये vector से आया. मतलब ये दोनों का resultant क्या होता है? a vector. अगर आपको ये vector नहीं दिया, ax और ay दिया, so it was not provided. a vector is not provided, but its horizontal component ax and vertical component ay is provided. Then from these two vectors also we can find the vector a. So vector a will be equal to square root of ax square plus ay square. See, actually the resultant formula is like this, na? Ax square plus ay square 2ax ay cos theta. Okay, or cos alpha, or let it be cos alpha. See, here whenever you want to find resultant between two vectors, then what you need to do? So square root ax square vector 1 square plus vector 2 square minus plus 2 ax ay cos alpha. This is the resultant formula you have learnt. But यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. सो cos 90 क्या हो जाता है? 90 डिग्री. cos 90 is 0. सो मतलब व्हेन टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, देन द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सिंपली स्क्वायर ऑफ द अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर्स इटसेल्फ, सम ऑफ द वेक्टर्स इटसेल्फ. सो whenever two vectors are perpendicular to each other, then the resultant will be equal to square root of vector 1 square plus vector 2 square. This is very very important, you need to remember this. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. देखिए चाहिए तो ये दोनों x कंपोनेंट लो, x कंपोनेंट लेके करो. सो a1 cos स्क्वायर थीटा, a1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. सो a1 स्क्वायर अगर कॉमन किया, मैंने कॉमन लिया, तो इसको sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. सो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. तो ये बाहर आ जाता है a1. देखिए a1 इज़ द एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर ए. सो ये इसको और इसको स्क्वायर करके रूट करने से हमको ये वाला वैल्यू आया. इसका मतलब क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, द कॉम्पोनेंट वेक्टर्स रिजल्टेंट इक्वल टू
the original vector from where the resolutions are being made. Okay, that is a very very important formula. At the same time, अगर आपको थीटा चाहिए, सी इफ़ यू वांट टू फाइंड थीटा एंगल आपको चाहिए, then दिस tan थीटा इज इक्वल टू सी, दिस इज ए एक्स, इसको ये पैरेलल वेक्टर हो जाता है, ये वाई जो भी है, सो यहाँ से यहाँ लेके आ सकता हूँ बिकॉज दिस टू आर पैरेलल, these two are parallel vectors. So ay instead of writing ay here, I will put ay here. Then tan theta, what is tan theta? So tan theta, we have learned that tan theta is opposite by adjacent. So opposite वाला क्या है, ay, adjacent क्या है, ax. So मतलब tan theta is equal to ay by ax. So angle of the resultant is equal to tan inverse of ay by ax, tan inverse of ay by ax. So likewise, generally we can find the resolutions, or from the resolutions you can find the resultant, and also direction of the resultant vector you can find using theta formula. These are very very important. Okay, next is relative velocity. So let us see this concept of relative velocity. कभी भी देखिए relative का मतलब क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपको मालूम है v है, दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है vb. अगर आपको vb का वेलोसिटी, दोनों both are moving in the same direction, both are moving in the same direction. So now you want velocity of b with respect to a, velocity of b with respect to a. So there is an object a and another object b. A is moving with velocity va, b is moving with velocity vb. Then आपको vb का वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू a चाहिए, तो मतलब क्या हो जाता है, अभी vb माइनस, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है ना, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन सो दैट विल बी vb माइनस va. अगर किसी एक वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है या b अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तब क्या हो जाता है, सो vb का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो, लेकिन va का चेंज हुआ, तब क्या होगा, vb माइनस va का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब है इसका माइनस रखना पड़ेगा va के सामने. सो va माइनस va, दैट मीन्स vb प्लस va. सो इन दिस केस इट इज़ vb प्लस va, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द velocity with which you are comparing. If it is in the same direction, then you need to keep minus. If both are in opposite direction, then you need to add for getting the relative velocity. So now अगर बोट है रिवर में, बोट का प्रॉब्लम्स होता है, बोट अगर रिवर में जा रहा है तो रिवर में अगर रिवर का वेलोसिटी है तो उसमें दो केसेस होगा. अगर आप क्रॉस कर रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो आपको दो केसेस होता है, एक है शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, सो अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, सी देयर इज़ अ रिवर लाइक दिस, एक रिवर है, ये रिवर का एक वेलोसिटी है, सो लेट इट बी वी आर. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर. सो नाउ यू नीड टू क्रॉस द रिवर, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो आपको रिवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना है, तो मतलब क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दिस वन, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट वन. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको जाना है तो यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ टू द अपस्ट्रीम. इफ़ यू अलाइन योर सेल्फ टू द अपस्ट्रीम, देन बिकॉज ऑफ दिस रिवर वेलोसिटी gradually you will shift towards this path. So when you are moving this path, then only finally river will bring you to this path. This is the resultant motion. This is the motion of the boat, this is the motion of the river, and this is the resultant of the two motions. So एक ही बार दो मूवमेंट्स है यहाँ पे, एक बोट का मूवमेंट है, दूसरा रिवर का मूवमेंट है, दोनों का रिजल्टेंट चाहिए आपको इस लाइन पे. सो ऐसा आपको प्लान करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट. ओके, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द बोट है, इस डायरेक्शन में है. नाउ दिस इज़ द रिजल्टेंट वी आर, लेट इट बी वी आर, कैपिटल आर. सो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो नाउ यहाँ पे एक वेक्टर बनाया है, ये दो तीनों में एक वेक्टर का क्वांटिटी बनाया. सो यहाँ पे जो थीटा है, सो यू नो साइन थीटा फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल, यू नो व्हाट आर द वैल्यूज़, यू नो द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. आपको रिवर का वेलोसिटी मालूम है, दूसरा आपको बोट का वेलोसिटी भी मालूम है. तो नॉन फैक्ट्स जो हैं उसी से हमको थीटा फाइंड करना है. नॉन फैक्ट के हिसाब से कौन सा थीटा फिट होगा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट फिट होगा, साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज डिफाइंड लाइक ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस.
ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस के ऊपर आपको बोट का वेलोसिटी है और ऑपोजिट साइड के ऊपर आपका रिवर का वेलोसिटी है। सो दोनों आपको मालूम है। सो साइन थीटा यूज़ करके आपको ये फाइंड कर सकते हैं आप कितना एंगल पे आपको निकलना पड़ेगा। सो व्हाट एंगल यू नीड टू कीप फॉर द बोट सो दैट यू विल रीच द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, यू विल रीच द शॉर्टेस्ट पाथ। सो यहाँ पे वी आर अगर आपको फाइंड करना है, वी आर सो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, सो पाइथागोरस यूज़ करके आपको हाइपोटेन्यूस इज़ वी बी, सो वी बी स्क्वायर माइनस v small r is river. So vr is resultant, this is resultant, and here vr is river velocity, this is river velocity. So if you know the river velocity and the boat velocity, then you can easily find the resultant velocity. So resultant velocity आपको आ गया. So ये है आपका width of the river. So let this is d, d is the width of the river. So आपका टाइम क्या हो गया, टाइम ऑफ द क्रॉसिंग. So time of crossing, so let t is the time of crossing, which is equal to d by v resultant. So v resultant, this is the time taken by the boat to cross the river in the shortest distance. Okay, in the shortest, which is equal to d by square root of vb square minus vr square. So likewise we can find this, for this case we can find the relative velocity. What is the relative velocity here? So relative velocity, or sorry, resultant velocity you can find, an angle you can find, and also the time taken for crossing the river also you can find. Okay, another case is shortest time. Another case is what? Shortest time. So another case is shortest time. So shortest time. So to cross the river in the shortest possible time, you need to align your boat perpendicular to the river. So this is your direction of the boat. You should keep the boat like this, and river velocity will help you anyways. So river velocity will help you. So you will reach somewhere here. This is the resultant velocity. This is the what? Resultant velocity. This is your boat velocity, and this is your theta again here. Now that time crossing here, time of crossing क्या होता है? Time of crossing the river, t is equal to, again you are crossing a distance d दिस साइड. सो कभी भी देखिए आप एक ही बार दोनों भी कैलकुलेट, इस तरफ का वैल्यू भी आपको मालूम होगा, ये एल हो गया. इंक्लाइंड वाला जो डिस्टेंस आपने कवर किया उसको एल पकड़ के चलिए, टेक इट एज एल. ओके, ये जो है डी लेके चलिए, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू शोर्स ऑफ द रिवर. सो अगर आपको ये डिस्टेंस आप डाल रहा है, सो इफ़ यू आर टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, यू नीड टू टेक द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी. If you are taking this distance into consideration, you need to take the corresponding velocity. So यहाँ पे एक चीज़ क्या है, so if you take this or this, you will get the same time value. So VB d by VB is equal to L by VR. So दोनों में आप करके देखिए अगर चाहिए तो. So you will get the same time value between these two. So अगर आपको shortest distance से का टाइम फाइंड किया या आपका रिजल्टेंट डिस्टेंस से टाइम फाइंड किया, तो दोनों में एक ही वैल्यू आएगा. सो फ्रॉम बाय दैट इफ यू सी टी इज इक्वल टू डी बाई वी एम डी बाई वी बी इज इक्वल टू ओ बी, और दिस साइड इज लेट दिस इज एक्स, टेक दिस एज एक्स, लेट दिस इज एक्स, देन this is equal to this inclined distance is equal to, let this is O A B. Okay, then OB is equal to how much? This is a right angle triangle. So this is hypotenuse. So hypotenuse is equal to x square plus d square by, अगर VB आपको चाहिए, VB चाहिए तो VR square. So river का velocity VR, resultant velocity VR square minus river velocity. Okay, no, I am taking this one ना, तो आपको क्या करना, resultant लेना पड़ेगा. 1 second, a small correction we need to make here. This numerator is belonging to this side OB, right? So OB के ऊपर velocity VR आप यहाँ पे डालना पड़ेगा. VR is nothing but what? VB square plus v स्मॉल आर स्क्वायर. सो ये दोनों दो साइड का वेलोसिटीज़ हैं. हाइपोटेनियस के ऊपर वेलोसिटी अगर आपको चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम. सो स्क्वायर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस. सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द थीटा, बाय दिस वे यू कैन फाइंड द टाइम.
अगर आपको tan थीटा चाहिए तो थीटा यहाँ पे कन्वीनियंट कहाँ है, आपको क्या क्या पता है, VR पता है, VB पता है, तो यहाँ पे साइन नहीं चलेगा, तो यहाँ पे tan लेना पड़ेगा। tan लेने से tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट x, अपोजिट में क्या है VR, इस तरफ क्या है VB, और अपोजिट में x है, इस तरफ D है, x बाई D करो या VR बाई VB करो, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगा। Likewise you can find the theta, so you can find the time for crossing the river, also you can find the theta with which you can reach the other side of the river. Okay, now next is we are going to discuss motion in a plane. So we have seen motion in a straight line in kinematics part, so now let us see motion in a plane. See motion in plane. सो कभी भी देखिए, अगर प्लेन में आप अगर जाएंगे, प्लेन में मतलब क्या होता है, आप एक्स वाई डायरेक्शन दोनों एक ही टाइम में कवर करेंगे। सो व्हेन यू लुक एट दिस मोशन, सो यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट है, एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट है, और साथ साथ वाई एक्सिस में भी मूवमेंट है। सो बोथ इन बोथ एक्सिस द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। सो उसी टाइप के मूवमेंट्स का हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। मोशन इन प्लेन में अगर स्ट्राइट लाइन में अगर आप करेंगे तो इधर एक्स एक्सिस होगा आपका मोशन, और वाई एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस होगा। सो अगर आपको वन डायमेंशनल मोशन बोला तो मतलब आपको एक ही डायरेक्शन में आपका मोशन कन्फाइन होगा। इफ़ इट इज़ इन 2D देन इट इज़ इन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, वॉट एवर इट मे बी। So we generally consider in XY plane, we generally consider it in XY plane. So यहाँ पे क्या होता है, velocity का component ऐसा होता है u, ऐसा with some angle theta. So with some angle theta you will your velocity project, if your object velocity will be with an inclination which is the angle theta. इसका भी 2 resolutions होगा, एक होता है vertical resolution, मतलब यहाँ पे ऐसा है u, so u का एक theta है, so the horizontal component is u cos theta and there will be a vertical component which is u sin theta. So vertical component क्या होता है, g के opposite और in the direction जा रहा है। So vertical direction में क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है इस तरफ, ये नीचे आ रहा है इस तरफ, मतलब ये दोनों जगह में इसके ऊपर acceleration due to gravity का influence रहता है। So because of which the u sin theta component is varying component. So u sin theta varies throughout the flight. सो थ्रू आउट द फ्लाइट u sin थीटा का वैल्यू, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है थ्रू आउट द फ्लाइट। सो ये चेंज होता है। और u cos थीटा विच इज़ ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्लाइट। ओके, इसका मोशन पूरा ख़त्म होने से टाइम में वर्टिकल कंपोनेंट लगातार चेंज होता रहता है, एंड मैक्सिमम पॉइंट में ज़ीरो भी होता है, यहाँ पे ज़ीरो भी होता है, वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम ज़ीरो हियर, बट इफ़ यू लुक एट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट विल u cos थीटा everywhere it is u cos theta. So u cos theta is constant throughout the flight. Okay, now see here, ये पार्टिकल एक ही टाइम में एक्स एक्सिस में भी एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वाई एक्सिस में भी एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बराबर। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है कभी भी टाइम एट एनी टाइम टी, अगर देखिए यहाँ पे x कवर किया इसने, सो लेट दिस इज x डिस्टेंस कवर किया। वेलोसिटी क्या है, कभी भी देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी u cos थीटा है, सो t टाइम में है, सो इट विल कवर ए डिस्टेंस x विच इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t एट टाइम t। सो अगर आपको टाइम t चाहिए तो x बाई u cos थीटा, x बाई u cos, दिस इज द टाइम एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम t is equal to x by u cos theta. Similarly, if you look at the y axis, in y axis में अगर आप देखेंगे, so y axis में acceleration है, x axis में क्या है, acceleration is 0, in x axis acceleration is 0, that is the reason why I am using simply s is equal to vt formula. x axis में acceleration 0 है, इसीलिए मैं सीधा s is equal to vt वाला फॉर्मूला यूज़ किया यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन y axis में क्या है, acceleration है ड्यू टू ग्रेविटी, इसको क्या करेंगे, s is equal to ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हाफ क्यों रखा है, इसलिए बिकॉज इट इज़ मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी हियर, आप देखा तो इसका मूवमेंट कैसा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसीलिए माइनस लिया मैंने। सो यहाँ पे y का जो x का प्लेस में क्या होता है, y होता है u sin थीटा होता है, बिकॉज इन वर्टिकल डायरेक्शन आई एम राइटिंग, इन वर्टिकल डायरेक्शन द वेलोसिटी कंपोनेंट इज u sin थीटा। t मैं क्या करता हूँ, यहाँ का जो t है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, बिकॉज
the object will cover the distance in x axis and y axis simultaneously at any point of time. अगर यहाँ पे x कवर किया इसने तो इसी टाइम में यहाँ पे भी y कवर होगा. So whenever it is covering x direction at a time t, it is covering a distance of x in x axis. At the same time, in the same time interval only, it is covering a distance of y in y axis. यहाँ पे x axis में x distance cover कर रहे हैं. At the same time, it is covering a distance of y in the y axis. So इसीलिए same time है, इसीलिए यहाँ पे जो time है वो यहाँ पे रख सकते हैं. ये x by u cos theta, x by u cos theta minus half g again x by u cos theta, okay, whole square. इसको हम reduce करेंगे तो क्या होता है, u cancel हो जाता है. Sin by cos tan x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. This is the equation of the trajectory. इसको हम क्या कहते हैं, equation of trajectory. So ये जो trajectory है इसको एक equation रूप में अगर आप लिखेंगे तो ये equation हो जाता है. आपको वर्टिकल हाइट चाहिए. वर्टिकल हाइट का मतलब क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट में. सो मैक्सिमम हाइट सेंटर पॉइंट में अगर आपको चाहिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए. सो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है जनरली इन 2D मोशन, सॉरी इन 1D मोशन. आपको टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या आपने बनाया था, u बाई जी. टाइम ऑफ डिसेंट भी u बाई जी. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u बाई जी. सो यहाँ पे u के जगह पे वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये u जो है वर्टिकली मूविंग ऑब्जेक्ट. सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा, u साइन थीटा. So simply time of ascent is u sin theta by g, time of descent is also u sin theta by g, time of flight is 2u sin theta by g. Okay, simple, very simple to remember also. Simply अगर कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं फार्मूलास, काइनेमेटिक्स फार्मूलास को वर्टिकल कंपोनेंट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो u का जगह पे u cos थीटा, सर u sin थीटा. अगर उसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में अप्लाई कर रहे हैं तो u का जगह पे u cos थीटा. सिंपल थिंग है. अगर आप किस प्लेन पे अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से वो प्लेन में जो वेलोसिटी प्रिवेलिंग है दैट वेलोसिटी यू नीड टू टेक. सो नाउ इफ़ यू कीप द टाइम वैल्यू एज u sin theta by g, then you will get the y value at the center of the flight, center of the projectile, okay, or the maximum height. So y is equal to, what is the equation of the trajectory? So x tan theta minus g by 2u square cos square theta into x square. अगेन एक्स स्क्वायर का भी एक रेंज होता है. एक्स स्क्वायर का एक्स का भी एक वैल्यू होता है, एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2. ये जो होता है हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट एज रेंज. इसको हम क्या कहते हैं, रेंज. सो ये जो वैल्यू है आपको एकदम आर बाई 2 पे आता है. आर बाई 2 जहाँ पे है रेंज में हाफ, सो दैट विल बी द लोकेशन ऑफ एक्स. सो एक्स का वैल्यू में आर बाई 2 सब्सटीट्यूट करना है. सो और टी के वैल्यू में टाइम ऑफ एसेंट सब्सटीट्यूट करने से आपको this value you will get. Now so from the, by substituting that you will get the h value as u square sin square theta by 2g, u square sin square theta, because y is equal to u sin theta t minus half gt square, right? So now what is the t value, u sin theta t है, मैंने क्या कहा था, टाइम ऑफ एसेंट लेना पड़ेगा, मतलब u sin theta by g माइनस 1 बाई 2 जी u sin theta बाई जी होल स्क्वायर, u sin theta बाई जी होल स्क्वायर. आपको ये सॉल्व करने से ये फॉर्मूला आ जाता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज़ द वर्टिकल हाइट. एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने बोला r, s इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. s इज इक्वल टू, दिस इज r इज इक्वल टू वी टी. v क्या है, u cos थीटा. t क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट. इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पूरा फ्लाइट ख़त्म करने से, तो यहाँ शुरुआत हुआ फ्लाइट, यहाँ ख़त्म हुआ, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये टाइम ऑफ एसेंट हो जाता है. यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट है, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट. सो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट ख़त्म करने के बाद दैट पार्टिकल विल रीच दिस पॉइंट. सो दिस इज़ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ नीडेड. सो यहाँ पे जो भी टी आप डालेंगे, सो दिस टी एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला में जो t है, t इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज़ 2u sin theta बाई g. मतलब क्या होता है, u स्क्वायर हो गया 2 sin theta cos theta बाई g. सो 2 sin theta cos theta क्या होता है, sin 2 theta. सो u स्क्वायर sin 2 theta बाई g, u स्क्वायर sin 2 theta बाई g. So this is the range formula, vertical height formula, all the formulas we have seen.
ओके, तो अगर आपने इसको ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा किया, एक वर्टिकल हाइट के ऊपर से आप डाल रहे हैं ऐसा, so this is the vertical height. So from here you have started your projectile, then what will be the equation of trajectory, what will be the time of flight, and what will be the horizontal range. We will discuss about this in the next session. Okay, thank you. If you like the video, please share with your friends and subscribe to the channel. Post your comments if you have any doubts. Thank you.